Good afternoon, everybody. A warm welcome from the team of Greenomix World today, and thanks for joining. And I think some more people will be joining with us after some time. So basically, just to give an idea, just Greenomix World is into a renewable energy consulting firm and an industry and engagement company. So we know the difficulty of the COVID-19, which has brought down the whole world to a standstill condition as of today. As of now, in India, I think more than 28,000 cases has been registered where people has been affected. So I know everybody who is present here is going through a difficult time, and it's very tough to manage ourselves staying quarantined for a long time inside a home, no work to do. But the great thing about this 1 month, me being at home right now is uh, I focused on a lot of things in order to boost my hobbies or whatever activities I had, and hopefully everybody who is attending this session today from the Art of Living um, um, from Mr. Kuldeep Singh. So he will be, so just to give an idea, so the whole idea of conducting this webinar with you guys today is to give you a little bit idea about how to practice, some kind of a structured way of meditation process, so that you will be at ease with yourself. There will be some guidelines on the stress management systems and all. So today, Mr. Kulpreet Singh, who is joining from the Art of Living. So good afternoon, Kulpreet. Thanks for coming today. Then just to give an idea about Kulpreet, so he's a Manipal University passed out guy, left the corporate from McKinsey and Zomato and Amazon. Just I don't know. He must be having a great time in corporate, but he left the corporate world and now being a full-time practitioner of the art of living, and he's a regular visiting faculty to most of the top institute in the globe in India, from IIMs to IIT Delhi to all these places, and he's been doing a phenomenal job. And hopefully today Kulpreet will be doing a wonderful job in terms of guiding the whole participants who are present over here, in order to give them some idea about how they should manage themselves and how exactly stress can be reduced in terms of a structured guideline going forward. I think there are a lot of people are still joining. Welcome, Kulpreet. Can you hear me? Hello. Yes, sir. Yes, I can hear. Wonderful, wonderful to be with you today. Thanks for joining. Um, so I think from now onwards, I'll hand over the whole session to you. Just to brief you all the participants, if there is any doubt or any type of reiteration you want to receive, so kindly drop a chat message to us, so that will be communicated with Kulpreet in order to maintain the peace and no noise scenario at all times. And Kulpreet, welcome to Greenomix World, and thanks for joining. And now it's over to you. Okay. So, hello everybody. I think all your videos are off, and we'll communicate through the chat box so that there is a noiseless communication as such. So, as sir had told about me, I'm basically from Hyderabad, and I've done my computer science engineering from Manipal. So, we'll be here for a little bit of time today. Before going forward, can you all hear me? Like, how will I know if they're able to hear me? Like, if everybody is Kulpreet, able to hear me. I think everybody is hearing you. Okay, okay. So now there has been kind of a shift in the world. Everyone has gone online, and we are spending so much time on the screen.
So before starting, I would like to ask you all that how many of you are getting frustrated at home? Just कितने? Kulprit, just one. Do you want I unmute the whole participant so that they can No, have no, an sir. interaction with No. you, not required? They can type it in the chat box. I'll read it. Sure. Yeah. If you all can type your answers in the chat box, I'll read it. Unmuting, muting will take a lot of extra time, I think. No? Yeah. So how many of you are very busy or very free? Like, can you just type it out in the chat box for me? Like, क्या चल रहा है आपके साथ घर पे? Like anything that is happening or any issue that you're facing as such, which you want me to address in this session. You can type it out in the chat box in the next 2-3 minutes. So people are writing, but it's coming as a private message. So Okay. people are happy to spend time with parents. Some are practicing their hobbies, I think, Okay. and some one is Rabi Somaya. He's saying that could not work to my full potential because I keep on worrying. So someone is saying I'm completely free. What to do? Okay. So these are the messages, and there is anxiety regarding jobs. So that Okay. is Arijit Kiran is asking. So Okay. So this is what generally happens, you know, that on a day-to-day basis, we are so much used to doing something or the other. हमको कुछ काम करने की इतनी आदत है कि हमें कुछ करना ही होता है दिन भर. We were so busy in the whole day. We used to start our day at 8 o'clock, come back very tired and then go to sleep. पर अभी प्रकृति ने, like the nature has done such a thing that we all have to just sit at our home. Yes. So all that activity, जो हमें activity की जो आदत थी, that activity all goes in the mind. Yes or no? So because of no activity in our daily life, अपना mind it starts racing. क्या होगा? अरे आगे क्या होगा? हमारे बच्चों का स्कूल कब शुरू होगा? Little bit of Hindi is okay, no sir? I think people are also asking to mix both English and Hindi. हाँ, ठीक है. So ऐसे सोचना तो ज्यादा सोचने लगता है माइंड जब हम खाली बैठे रहते हैं कि अरे अभी हमारा जॉब रहेगा कि नहीं, इस महीने की सैलरी आएगी कि नहीं. आई एम जस्ट जनरली सेइंग, नॉट स्पेसिफिक टू यू, बट बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा एंड बाहर जाने से लोग डर रहे हैं. यू नो द होल थिंकिंग ऑफ द माइंड हैज बिकम अ लॉट इन दिस लॉकडाउन. नाउ अब इतनी आदत हो गई है हमें एक्टिविटी की, हम इनएक्टिविटी में रह ही नहीं पा रहे. तो यू सी द माइंड आइदर गोज इन द पास्ट और इन द फ्यूचर. मन या तो कुछ बीती हुई घटनाओं के बारे में सोचता है या आने वाली घटनाओं के बारे में सोचता है. एंड इफ यू सी, हमारा मन कंटिन्यूअसली इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर, पास्ट एंड द फ्यूचर. अरे ये बैंक से ये काम करवा लेना चाहिए था, अरे ये आगे जाके ये करना है, पता नहीं कैसे होगा, लोन चुकाना है कैसे होगा. तो हमारा मन जब कंटिन्यूअसली पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर में जाता रहता है, तो बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस ऑसिलेशन ऑफ द माइंड, समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेस डेवलप्स इन आवर बॉडी एंड माइंड. स्ट्रेस कैसे होता है? इसी जब माइंड पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर में जाता है तो अपने मन में और बॉडी में स्ट्रेस आता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इफ यू लाइक गेट अ समोसा, अभी तो नहीं खा सकते बाहर से समोसा, सपोज से होममेड समोसा आप लेके आए. समोसा सबको गरम चाहिए है कि नहीं? तो समोसे को आप अवन में रखो, फिर निकाल के फ्रिज में रखो, अवन में रखो, फ्रिज में रखो, अवन में रखो, फ्रिज में रखो. ऐसे 10-15 बार समोसा अवन फ्रिज अवन फ्रिज अवन फ्रिज में जाता है, तो अंत में उसकी हालत क्या हो जाती है? कुछ मतलब अच्छा सा जैसे हम लाए थे वैसा नहीं हो पाता ना. तो
दिन भर हमारा माइंड भी पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर करता रहता है, तो ये स्ट्रेस, अब तो हम घर में हैं, ये स्ट्रेस हमारे आसपास के लोगों पे निकलता है। बहुत जल्दी इरिटेशन आने लगता है, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है अपने में भी, पेरेंट्स पे या किड्स और लाइफ पार्टनर पे, उन पे ये स्ट्रेस ऐसे बरसता रहता है लॉकडाउन बिना किसी वजह के। यस, सो इन दिस लॉकडाउन, यू नो, इस लॉकडाउन में अब हमारे हाथ में तो कुछ ज्यादा है नहीं कि हम बाहर जाके कुछ कर सके। There are two ways by which you can come out of this lockdown. One way is कि आप इस लॉकडाउन से इरिटेट होके, स्ट्रेस होके बाहर निकले जब ये लॉकडाउन खत्म होगा। द अदर वे इज कि आप इस लॉकडाउन से और ज्यादा अच्छे, मुस्कुराते हुए और स्किल्ड बन के निकले। ठीक है, सो सम आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, नो, इट्स द पेस इज ओके, राइट? ओके, तो अब देखिए, धरती, like the whole nature has pressed a reboot button on the planet in a way. हमने इतना यूज किया, इतना काम किया, इतना सब कुछ यूज किया, अब मदर नेचर इज लाइक अभी मेरे को थोड़ा विश्राम चाहिए थोड़े दिनों के लिए, यस और नो? अब इस नाउ आपकी कंपनी तो नेचर फ्रेंडली है ही, ग्रीनोमिक्स जो है, it already knows the ideals and values, I think, are of conserving nature, sustainable development. तो इस लॉकडाउन के टाइम में हम अपने आप को नेचर के साथ कैसे अलाइन कर सके, ये हमें देखना है, हाउ वी कैन अलाइन आवरसेल्व्स विथ नेचर। ओके, सो वन वे इज, अब माइंड में जो भी चल रहा है उसको हम माइंड के स्तर पे तो हैंडल नहीं कर सकते। जैसे आई विल गिव यू एन एक्टिविटी नाउ, माइंड में एवरीबडी, आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं आपको देख नहीं सकता हूं, पर मैं इतना सोच लूंगा कि आपने आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद करके आप कुछ भी सोच सकते हो, पर एक नीले बंदर के बारे में मत सोचिए, ठीक है? डोंट थिंक अबाउट अ ब्लू मंकी। अब डोंट थिंक अबाउट अ ब्लू मंकी वेयरिंग अ पिंक हैट। कुछ भी सोच सकते हो आप, बस एक नीले बंदर को पिंक हैट पहने हुए मत सोचिए। ओके, स्लोली ओपन योर आईज। अब आप सर को चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके मन में क्या आया। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा ब्लू मंकी विथ पिंक हैट। Exactly. यस और नो सर? 5 answers same. या, सो ऐसे बहुत बार होता है कि जो हम मन में बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं, मत सोचो मत सोचो मत सोचो, वो ज्यादा ही आता है हमारे मन में। या, सो दिस इज द रूल ऑफ द माइंड, वॉट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। आप जितना उसको बाहर भगाने की कोशिश करोगे उतना वो अंदर आता जाए। अब जैसे आप लोगों की कंपनी इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड ऑल दैट, अपनी बॉडी और माइंड का भी एक एनर्जी लेवल होता है। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ दिन ऐसा होता है कि कुछ गलत भी हो जाए या कुछ गलती भी हो जाए किसी से, आपको इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आता या इतना ज्यादा इरिटेशन नहीं होता। ऐसे दिन होते हैं हमारे जीवन में, यस और नो? सम डेज, नो, वेरी डिफिकल्ट इट इज टू बॉदर अस, पर ऐसे भी कुछ दिन होते हैं जब छोटी छोटी चीजों से हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इतनी छोटी सी भूल होती है, बट वी एनालाइज सो मच अबाउट इट, हम फट पड़ते हैं, यस और नो? सो जो दिन, द डेज व्हेन यू डोंट फील सो बैड इजीली, जैसे जिस दिन आपको बहुत मुश्किल से बुरा लगता है, उस दिन आपकी एनर्जी लेवल हाई होती है। अगर आपकी एनर्जी लेवल हाई है तो अगर कोई आपको डांटे भी तो आप मुस्कुरा सकते हो, और जब आपकी एनर्जी लो होती है तो आपको छोटी छोटी चीजें परेशान करने लगती है, स्मॉल स्मॉल थिंग्स विल बॉदर यू। तो वी हैव 4 ways बाय विच वी गेट एनर्जी, ठीक है? तो 4 सोर्सेस है हमारे एनर्जी के। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या लगता है कौन से सोर्सेस है हमारे एनर्जी? What are the sources by which we get energy? If you can type it out in the chat box quickly.
Okay, somebody is told food is a source of energy. Yes, food is a source. और क्या? Any other answers? I think sunrise, someone has written. Sunrise. Okay, what else? I think you can see the charts now. I can see the chat, sir. Yeah. Okay. Food, oxygen, sunrise, food. Okay. Any other answers? People around us. Okay. तो एक आंसर तो सही है हमारा, फूड. यस, फूड गिव्स अस एनर्जी, बट food also in the right quantity, doing something which we like. Yes, very good. So food भी सही मात्रा में खाने से. Matthew is saying sleep. Yes, sleep is also a source of energy. So first source of our energy is food. Now सब लोग ऐसे हाथ कीजिए. This is, just close your palms in a, इसको अंजलि बोलते हैं. So this is the size of our stomach. ठीक है, तो इतना खाना हमारा स्टमक एक बारी में डाइजेस्ट कर सकता है. ठीक है, तो राइट क्वांटिटी ऑफ फूड गिव्स अस एनर्जी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 4 किलो बिरयानी खा लो और आपको बहुत अच्छा लगता है, आप ढूंढते हो कि बेड कहाँ पे. यस और नो? द सेकेंड सोर्स ऑफ एन एनर्जी जो मैथ्यू ने बोला कि स्लीप. स्लीप इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर एनर्जी. ठीक है, तो 6 to 8 hours of sleep is advised for a adult for having good energy levels. आप देखो, आप कम सोते हो तब भी आपका एनर्जी लेवल कम होता है, एंड व्हेन यू स्लीप अ लॉट लाइक 14 hours 15 hours on a weekend, तब भी आपको ज्यादा और ड्राउजी ही लगता है. तो स्लीप इज ऑल्सो a source of our energy. The third source of our energy, which nobody told, is the breath. सांस लेने से भी हमें एनर्जी मिलती है, और सांस हमारी इतनी इंपॉर्टेंट एनर्जी है. आई विल टेल यू स्टैटिस्टिक्स. वी टेक अराउंड 3 to 4 kgs of food per day. ठीक है, and we drink around 3 to 4 liters of water also per day. Per in 24 hours we take 10,000 liters of breath. तो breath is a major source of our energy. पर हमें कब याद आता है कि हम सांस ले रहे? जब लिफ्ट नहीं चल रही होती है, या फिर हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया और भागना पड़ गया, तभी हमें लगता है कि हम सांस ले रहे हैं. यस, तो ब्रेथ इज द थर्ड सोर्स ऑफ आवर एनर्जी. एंड देन काफी लोगों ने बोला दैट डूइंग समथिंग वी लाइक एंड थिंकिंग पॉजिटिव, सनराइज, सनसेट, सो ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट टू अ हैप्पी मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड. जब आपका मन खुश होता है तब भी आपको एनर्जी मिलती है. तो कुछ लोगों को संगीत सुनने से एनर्जी मिलती है, कुछ लोगों को अपने दोस्तों से बात करने से एनर्जी मिलती है, कुछ लोगों को लॉन्ग ड्राइव पे जाने से एनर्जी मिलती है. ये सारी चीजें कम अंडर हैप्पी मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड. अगर मन खुश है तो उससे भी एनर्जी मिलती है. सो नाउ the good news is that the rest of the world knows only two sources of energy, food and sleep. But through this session, and we also have different workshops, there we teach you how you can increase your energy levels with the breath, and through the breath we reach a happy meditative state of mind also. Okay, so let us talk a little bit about the breath. आप देखिए, आपके मन में अलग अलग इमोशन आते हैं तो आपकी सांस का पैटर्न बदल जाता है. हैव यू एवर ऑब्जर्व? या यू टेल मी, जब आपको गुस्सा आता है तो आप कैसे सांस लेते हो? बहुत तेज हो जाती है सांस. यस और नो? या एंड व्हेन यू आर वेरी सैड और व्हेन यू आर नॉट वेल, तब भी सांस का पैटर्न अलग होता है. करेक्ट और नॉट? यस. सो हर इमोशन के साथ हमारी सांस बदल जाती है. इन एक्टिंग स्कूल्स अब्रॉड ये टेक्निक यूज की जाती है कि अगर रोने वाला सीन है तो आप इस तरह सांस लीजिए, आपको रोना आ जाएगा.
अगर गुस्से वाला सीन है तो आप एक तरह दूसरी तरह से सांस लीजिए, आपको गुस्सा आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया है, सा अपने इमोशंस के हिसाब से हमारी सांस बदलती रही है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी सांस को बदलेंगे ताकि हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकें। थोड़ा सा मैं आपको अभी बताऊंगा, ज्यादा इसमें द टेक्निक्स दैट यू कैन प्रैक्टिस एट होम एंड ऑल दैट विल बी taught in the, we have a workshop, so that will be taught in the workshop that we, but now let us check how our state of mind can change with a little bit of breathing. Okay, तो सांस लेने से हमारे मन की स्थिति कैसे बदलती है हम अभी चेक करेंगे, ठीक है? Yes, so now everybody, you can sit comfortably if you are lying down or not, like if you are, just sit comfortably with your spine erect and take some deep breaths in and out. Breathe in, breathe out, 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 breathe in and breathe out. Now I will give you a certain count, so you will have to breathe in till that count. Like I'll say breathe in 2, 3, 4. तो उतने टाइम तक आपको सांस लेनी है, ठीक है? Yes. So sit properly, comfortably. Now breathe in 2, 3, 4. Out 2, 3, 4. 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 Very good. Now we will learn a new kind of a breathing. It's called Kapalbhati. If you already know, you can do it. For those who don't know, अभी हम एक नई टाइप की सांस सीखेंगे, उसको बोलते हैं कपालभाति। तो आपको ऐसे नॉर्मली बैठना है, नॉर्मली सांस लेंगे, we will breathe in normally and फोर्सफुली हम सांस छोड़ेंगे, जोश के साथ सांस छोड़ेंगे और पेट को, नाभि को अंदर खींचेंगे, ठीक है? सो इट गोज, ठीक है? समझ में आ गया? Okay, if possible you can switch on your videos so I can see if you are doing properly or not. सब लोग अगर थोड़े टाइम के लिए अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो मैं देख पाऊंगा कि आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। ऑडियो ऑफ रखिए, वीडियो आप ऑन कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो, ठीक है? तो अब हम कपालभाति करेंगे। लेट्स डू सम राउंड्स ऑफ कपालभाति। 10 times we will do this. Breathe in normally and breathe out forcefully. Very good. बहुत अच्छे। अब आप आंखें बंद करके करिए। We will close our eyes and we will do the same thing. मेरे इंस्ट्रक्शन सुनते जाइए। आंखें बंद रहेंगी और कपालभाति फिर से करेंगे। नॉर्मली सांस लेंगे और जोश के साथ बाहर छोड़ेंगे। और विश्राम करें। आंखें बंद रखते हैं थोड़े टाइम, फॉर सम टाइम वी विल कीप आवर आईज क्लोज्ड। गहरी सांस अंदर लेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन,
और सांस छोड़े एंड ब्रीद आउट। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए थोड़े टाइम के लिए। एवरीबडी क्लोज योर आईज। नाउ हम और एक प्राणायाम अभी सीखेंगे। वी विल लर्न वन मोर ब्रीदिंग टेक्निक नाउ। इट्स कॉल्ड द भ्रामरी प्राणायाम। इसमें सांस लेनी है नाक से और सांस छोड़ते वक्त ऐसे साउंड करनी। ठीक है? ब्रीथ इन नॉर्मली, while breathing out you have to make a humming sound. ठीक है? तो ऐसे हम 5 बार करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद इन, breathe in, breathe in, breathe in for the last time. Very good. Now you can close your eyes and keep sitting. अब आंखें बंद रख के 2-3 मिनट हम बैठ जाएंगे और इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ सुनेंगे। हल्के भाव से जो भी बोल रहे हैं उसको सुनेंगे। ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है, बस हल्के से सुनना है। जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, बिना किसी प्रयत्न के हल्के से सुनना है। आराम से बैठ जाइए। सिट कंफर्टेबली एंड इजीली। टेक अ डीप ब्रेथ इन, साधारण सांस अंदर और छोड़ दे, ब्रीथ आउट। एक और साधारण सांस अंदर और छोड़ दे। हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। थोड़ा सा स्माइल कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। आंखें बंद ही रहेंगी। लिसन टू ऑल द नॉइसेस इन द सराउंडिंग्स। वातावरण में हो रही हुई सारी ध्वनि को सुनिए। पंखे की आवाज, रोड पर कोई चल रहा है उसकी आवाज, चिड़ियों की आवाज, जो भी आवाजें हो रही है आपके आसपास उनको स्वीकार कीजिए। Listen to all the noises in the surroundings. Be in harmony with your surroundings. अपने वातावरण के साथ संपूर्ण हार्मनी में आ जाइए। Accept all the noises in the surroundings. सारी आवाजों को स्वीकार कर लीजिए। एक गहरा सांस अंदर लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब अपने शरीर पे ध्यान लेके आइए। कीपिंग योर आईज क्लोज्ड, बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी। आंखें बंद रखते हुए अपने शरीर पे ध्यान लेके आइए। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर फोरहेड, रिलैक्स योर आर्म्स, रिलैक्स योर शोल्डर्स। अगर कहीं शरीर में
पेन है या डिस्कम्फर्ट है तो उसको रहने दीजिए थोड़े टाइम. If there is any pain or discomfort in the body, let it be for some time. Do not fight with it. उसके साथ कुछ झगड़ा या ऐसे कुछ मत कीजिए. अगर दर्द है या कुछ असुविधा है तो थोड़े समय के लिए उसको रहने दीजिए. अपने वजन को याद कर लीजिए. रिमेम्बर द वेट ऑफ योर बॉडी. जितना भी है आपका वजन, 60 किलोज, 70 किलोज, 80 किलोज, अब अपने पूरे वजन को अपनी कुर्सी पे डाल दीजिए. Put the entire weight of your body on the chair or on the floor that you are sitting. Let the chair carry your weight. कुर्सी को आपका वजन उठाने दीजिए. आप पूरा वजन नीचे छोड़ दीजिए. Relax your whole body. Again with a smile, breathe in. मुस्कुराहट के साथ एक सांस अंदर लीजिए और छोड़ दीजिए. एंड ब्रीथ आउट. अब अपने मन के प्रति ध्यान लेके जाइए. टेक योर अटेंशन टू योर माइंड. जो भी थॉट्स आ रहे हैं मन में, जो भी विचार आ रहे हैं मन में, उनको आने दीजिए. किसी भी विचार को रोकिए मत. अच्छे विचार, बुरे विचार आने दीजिए. Do not fight with any thoughts in your mind. Let them come. Good thoughts, bad thoughts. Let everything come. Do not resist any thought. अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए. किसी भी विचार को पकड़ के ना बैठे. अच्छे विचार हो या बुरे विचार हो, उनको आने दीजिए. Take a normal breath in. एक साधारण सांस अंदर और छोड़ दें. And out. अब अपने भावनाओं के प्रति सजग हो जाइए. नाउ टेक योर अटेंशन टू योर फीलिंग्स. आपको जैसी भी भावना अभी लग रही है, however it is that you are feeling now, अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाइए. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट. जैसी भी भावनाएं उठ रही है मन में, उसके प्रति सजग हो जाइए. एक और गहरा लंबा सांस अंदर लीजिए मुस्कान के साथ. वन मोर डीप ब्रेथ इन विद अ स्माइल और छोड़े. एंड ब्रीथ आउट. यू आर पीस. यू आर जॉय. शांति और सुख हमारे अंदर ही है. ऐसा करें. अब अपने मन को पुनः अपने भावनाओं के प्रति ले जाइए.
Become aware of your thoughts, if any. Become aware of your feelings, if any. अगर कोई भावनाएं हैं तो उसके प्रति सजग हो जाइए. Become aware of your emotions, if any. Take a deep breath in. एक गहरा लंबा सांस अंदर लीजिए और छोड़ दे. Become aware of your body. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए. Become aware of your surroundings. अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाइए. Take a deep breath in and breathe out. एक गहरा सांस लीजिए और छोड़े. ओम शांति शांति शांति. एक बड़ी सी मुस्कान के साथ सांस अंदर लीजिए. With a big smile on your face, you may breathe in. थोड़ा और बड़ी मुस्कान. कुछ लोग सिर्फ 70% मुस्कुरा रहे हैं. Take another deep breath in. एक और गहरा लंबा सांस लीजिए और छोड़े. धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं. Slowly, taking your own time, you can open your eyes. Good. How was the experience? You can type in the chat box. कैसा लग रहा है आप लोगों को? Great, peaceful. बहुत अच्छे से किया आप लोगों ने सबने. Any other experiences you want to type? Meditate. Good. तो यही मैं बोल रहा था कि कैसे हम अपनी सांस के साथ अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं. इट्स अ गुड आइडिया. यस और नो? अभी हम अंदर लॉकडाउन में बैठे हैं. जैसे मैंने पहले बताया, इस लॉकडाउन के बाहर आप या तो यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ और यू कैन बिकम अ फ्रस्ट्रेटेड वर्जन ऑफ योरसेल्फ. अब जैसे नेचर रीबूट बटन दबा चुकी है तो हमें भी अपने सिस्टम को थोड़ा reboot button दबाना चाहिए. तो this was a little trailer that I gave you of meditation. There are many ways by which you can learn meditation. और हमारा जो एक प्रोग्राम है उसमें हम सिखाते हैं how you can practice this at home on your home. ठीक है, तो वो मैं रजत को बाद में बता दूंगा. अभी I think 5-10 minutes. If you have any questions, I can answer the questions. Ashish sir, anything else you want to add? No, you continue. I think some questions are there. You can address them. Okay, I think I'll answer a few questions. The first question somebody has written that please provide your insight on what made you shift from corporate to art of living world. Okay. So as I said, I was a computer science engineer and then I was working with all these multinational companies, but I had done my art of living course in my 11th standard itself. So
After the 11th standard, when I went to Manipal Institute of Technology, there I was organizing these workshops for my classmates, for other students. So there I saw a lot of change in the students. Like Manipal is very famous for all kind of not so good activities in college life. Manipal में ऐसे बहुत, तो मैंने देखा कि इस वर्कशॉप की टेक्निक्स को प्रैक्टिस करके मेरे दोस्तों का जो एडिक्शन था वो छूट गया. कुछ लोग ड्रग्स में पड़ गए थे तो वो उससे बाहर निकल के आ गए. कुछ लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बेटर हो गए. And some people they had a very difficult time to handle with their parents. कुछ लोग अपने पेरेंट्स से ठीक से बात नहीं करते थे तो उनको पर्सपेक्टिव मिला कि सो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट मुझे लगा कि इस वर्कशॉप से होता है. So after finishing my engineering, I became a part-time faculty of this program. So along with my work in office, on the weekends and in the evening, I used to teach this workshop. Ab, being in the corporate sector, you know, for 6, 7, 8 years, I realized that agar if you can handle your mind, you can handle anything in your life. अगर हम अपने मन को सुधार ले तो हमारा कुछ भी सब बाकी सब कुछ सुधर जाएगा. हमें बाहर कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है. Inside, if you are able to correct things, then life will be good. So then I figured that it is better to teach people meditation and make them happy than to just sit in front of a screen from 9 to 6 and get stressed and go back home. So then after a lot of thinking, I took this step to come and fully do this as a full-time thing. Yeah. So another question is how can I increase productivity using these techniques? तो जैसे मैंने अभी बताया ना, there are 4 sources of energy. तो अब आप देखो आपको breathing से और meditation से ज्यादा energy मिल गई. Obviously your productivity will increase. So if you practice these techniques, it will be like बाकी rest of the world is running on 2 cylinders, food and sleep. But you have 2 extra cylinders for your energy, breathing and meditation. तो जब आपका energy resource ज्यादा होता है तो you can do more work with more efficiency. तो वो practice करने से you will only see कि हाँ अपने जीवन में कि we are feeling more productive, we are able to do more in less time because now you have 2 extra sources of energy because of the techniques. Any other question? How to prevent unwanted thoughts from distracting us? Okay. So as I said, thoughts किसी की परमिशन लेके तो आते नहीं है हमारे माइंड में. Yes or no? थॉट बस आ जाता है, किसी को पूछ के नहीं आता है. तो हाउ यू कैन हैंडल योर थॉट्स इज, अगर आप किसी थॉट को रेजिस्ट करोगे तो वो ज्यादा टाइम तक रहेगा. जैसे मैंने बताया कि बंदर के बारे में मत सोचिए, पर वो ही सोचता है. तो माइंड में ऐसे होता है कि आप कुछ भी अगर रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे या बोलोगे कि ये ना आए तो वो ज्यादा ज्यादा आता है. तो वन थिंग टू डू इज टू चेक योर थॉट्स इज टू चेक योर फूड. जब आप अगर ज्यादा अपने फूड हैबिट्स की वजह से भी अपने थॉट प्रोसेस में बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप ज्यादा मसालेदार या ज्यादा मीठा कुछ भी ज्यादा अति खाते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं. कुछ लोगों को भी ऐसे भी हुआ होगा कि आंखें बंद करने से एकदम से इतने सारे थॉट्स आ गए. तो वन थिंग इज टू चेक योर फूड इन दैट. एंड अनवांटेड थॉट्स को कैसे कंट्रोल करे, दैट इज थ्रू मेडिटेशन यू कैन डू. प्राणायाम और मेडिटेशन से अनवांटेड थॉट्स आना थोड़ा कम हो जाते हैं. जैसे मैंने बताया ना, इफ योर एनर्जी लेवल इज हाई देन द माइंड बिकम्स मोर परसेप्टिव. और एनर्जी लेवल्स को हाई करने का तरीका है प्राणायाम एंड मेडिटेशन. The next question is, how can I make myself more stable and focused? So being stable and more focused, again the answer is look at your lifestyle and do pranayam and meditation.
या क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे आई स्पोक अबाउट द ब्रेथ, बट हम लोग अपनी सांस पे उतना ध्यान देते ही नहीं, जबकि हमारे जीवन का आधार ही ब्रेथ है। ऐसा और नो? तो आपको माइंड में फोकस चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक बो एंड एरो से तीर चलाना है, तो जितना आपको तीर को आगे लेके जाना है, उतना आप तीर को पहले पीछे खींचते हो, है कि नहीं? जितना आप पीछे खींचोगे उतना तीर आगे जाता है। तो फॉर योर माइंड टू बी मोर फोकस्ड यू हैव टू बी मोर साइलेंट इनसाइड। या जितना आप अंदर से शांत रहोगे, अंदर आपका स्थिरता दृढ़ता रहेगा, उतना आप बाहर अपने जीवन में डायनामिक एक्सप्रेशन दिखा पाओगे। अगर एक व्यक्ति अंदर से हिला हुआ है तो बाहर वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकता। यस और नो? तो अपने अंदर से आपको स्ट्रांग बनना है, माइंड को स्ट्रांग बनाना है, तो वो सांस प्राणायाम ध्यान के माध्यम से होता है। और ये सिचुएशन भी हमारा ऐसा हो गया है लॉकडाउन की वजह से, काफी लोग अंदर से हिल गए हैं कि क्या होगा फ्यूचर में, कैसे होगा, हम बच पाएंगे कि नहीं, इकोनॉमी का क्या होगा, शेयर मार्केट का क्या होगा। तो अब इन चीजों में हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल किस पे है? हमारे मन पे और हमारी बॉडी। So this is the time for us to make upgrade ourselves and have a strong mind. देखिए, दुनिया में तीन तरह के विश्वास बहुत जरूरी होते हैं। एक है खुद पे विश्वास कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आऊंगा। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी आप देखो, जर्मनी, जापान, ये सारे देश पूरे बर्बाद हो गए थे, पर दे केम अप फ्रॉम इट एंड अभी वो लोग सारे समृद्ध है। यस और नो? ऐसे गुरुजी बोलते हैं कि इस सिचुएशन को आप एक वर्ल्ड वॉर जैसे ही देखिए। आप अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए। इट इज टेम्पररी, इट इज नॉट अ परमानेंट थिंग दैट इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। ये एक चीज अगर हम जान ले कि ये टेम्पररी है और ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, इससे भी हमें अंदर से बहुत शक्ति मिलती है। एंड प्राणायाम और ध्यान करेंगे तो ये नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस थोड़ा कम आएंगे, एंड आपके परिवारजनों को भी हेल्प करेगा। लाइक इफ वन पर्सन इज हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री इन द फैमिली, इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल इन द फैमिली आल्सो। सेम अप्लाइज फॉर नेगेटिव। अगर परिवार में एक इंसान गुस्सा है या दुखी है, तो वो सबको इफेक्ट करता है। तो एज इंडिविजुअल्स हु आर एबल टू एक्सेस प्राणायाम मेडिटेशन, आप प्राणायाम मेडिटेशन कीजिए रोज। आप देखोगे कि आपके मन में भी फर्क पड़ेगा और आपके घर पे, परिवार पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये टाइम ऐसा आ गया है कि हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट एक चीज जैसे मैंने पहले बताया, हमारे हाथ में हमारा मन और हमारी खुशी। यस, तो अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Kulpreet, I have a question. Does exercise in the gym is a form of So meditation I or think there are no hello? more questions in this. Hello? But time is also almost up. Kulpreet, can you hear me? It was very nice to talk to you Kul- all today. Kulpreet, I can you hope you hear me? enjoyed the Hello? session. I thoroughly enjoyed it. Kulpreet, can you hear me? Hello? Yeah, now I can hear you. One question is, exercise is a form of meditation or both are different? I'm little not sure. Huh. So, sir, exercise is for the body. जैसे exercise is not a meditation. Are you asking me the difference between yoga and exercise? No, I am asking about meditation Huh. and exercise. I think yoga and going to gym both are a form of exercise, or I am not sure about the Okay. whole So spectrum. exercise is purely for the body, like you exercise to bring changes in your body. Yoga is much more than that. Yoga is the connection between our body, breath and mind. Okay, so yoga is a holistic thing that you do. Exercise is just that, you know,
If you do cardio, it focuses on one part of the body. If you do biceps, it focuses on another part of the body. So exercise is quite localized. Yoga is more of a global holistic thing. जैसे योगा से आपके मन पे, आपकी सांस पे और आपकी बॉडी पे भी फर्क पड़ेगा. Exercise is a very, you can say, a mechanical thing, but exercise is also very important. जैसे कुछ लोग आप देखो, they will be very restless, वो स्थिर बैठ ही नहीं सकते. या तो उनका हाथ हिलता रहेगा, या पाँव हिलता रहेगा, या ऐसे ऐसे करते रहेंगे, या कुछ खुजाते रहेंगे, या किसी को कुछ करेंगे, या तबला बजाएंगे टेबल पे. तो वो रेस्टलेसनेस को शांत करने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. एंड ऐसे लोग जब आंख भी बंद करते हैं तो उनका बहुत थॉट्स आ जाते हैं मन में. दे कांट कीप देयर आईज क्लोज्ड फॉर लॉन्गर टाइम. सो टू गो deeper in meditation or to sit still for some time, exercise is also essential. Amazing, Kulpreet. One more. How can I empty my mind from thoughts? Is it seriously So, required? I don't know. Kulpreet, you will be answering that. yeah. So how can you empty your mind of thoughts? Every time it is not possible. जैसे अभी हमने मेडिटेशन में हाउ डिड वी गाइड यू दैट अगले 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आप स्थिर बैठिए, अगले 5 मिनट के लिए ये कीजिए. तो हमारा माइंड, आवर माइंड इज सो यूज्ड टू डूइंग थिंग्स इन अ सर्टेन वे. इट इज लाइक, यू नो, आप इफ यू हैव अ पेट डॉग एट होम, शुरू में आप बोलते हो टॉमी सिट डाउन, पर वो डॉग ऐसे उछलता रहता है, इधर उधर उछलता रहता है. फिर कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद इफ यू से टॉमी सिट डाउन, कुत्ता बैठ जाता है. यस. फिर और कुछ महीने की ट्रेनिंग के बाद वो देख के ही, आपको देख के ही बैठ जाता है. यस और नो. सो ये थोड़ा ट्रेनिंग के बाद होता है. जैसे आपको अगर बॉडी में चेंजेस चाहिए, बॉडी में कुछ फर्क देखना है, तो कुछ टाइम लगता है उसके लिए. यस और नो. एकदम एक दिन में जिम में जाने से रिजल्ट नहीं आता. नाउ द माइंड इज मच मोर पावरफुल देन आवर बॉडी. देखिए, माइंड में एक थॉट आता है, मुझे खाना खाना है, तो आपकी पूरी 70-80 किलो की बॉडी उठती है, किचन में जाती है, खाना लेती है और खाती है. तो माइंड हैज द पावर टू कंट्रोल आवर बॉडी. अब दैट वे इट टेक्स इवन मोर टाइम टू कंट्रोल द माइंड. जैसे आपको माइंड में अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो और भी ज्यादा प्रैक्टिस लगेगा. तो हाउ टू एम्प्टी योर माइंड ऑफ थॉट्स? little pranayam and meditation you do daily. Over time you will see that very less thoughts come or no thoughts come. थोड़ा प्रैक्टिस से होगा. Thank you so much, Kulpreet. This is just amazing. 1 hour I just went through. Thank you everyone for being part of this amazing session today. I am also fortunate. Any assistance you people require, please write to us at every point of time. We'll be happy to help. Some similar kind of a session you want to organize anywhere in your organization or any corporates, I think Kulpreet will always be happy to do that for the people. Thank you everyone. Stay safe, stay at home. Hopefully everybody gets out of this situation very fast. And do practice what Kulpreet told to us today. Thank you. Thanks again to come to this Greenomix World platform. Yeah. And a lot of thanks to Kulpreet. Thank you so much. Thank you for. I had a wonderful time. Thank you so much. Thank you so much.